student, welcome back again to my video lecture number 4. My entire last lecture more concentrated towards these particular topic. Name is ionic solid, metallic solid, covalent solid and molecular solid. And now today we will discuss in detail about the example of the covalent solid. Example of the covalent solid. An example is, first example is diamond. Second example is graphite and third example is fullerene. And today we will discuss in detail only the topic name is a diamond and remaining two example of a covalent solid, that is the graphite and fullerene, we will also taken in next video lecture. So today's wonderful topic name is diamond. And first point of diamond, it is covalent crystalline line solid. Before some time I have already told you it is the example. Diamond, it is the example of the covalent solid. That's why first point is it is a covalent crystalline solid. And second point, it is allotrope of carbon. It is the allotrope of carbon. Now, what is meant by the allotrope? Allotrope means what? So allotrope, it means the substance which are present in a two or more form. That substance it is known as the allotrope. जैसे कि यहाँ पे देखा है कार्बन. कार्बन जो है हमको दो से ज्यादा डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट रहता है. जैसे कि कार्बन यहाँ पे कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है, तो डायमंड के फॉर्म में प्रेजेंट है. कार्बन जो है हमको ग्राफाइट के फॉर्म में भी मिलता है. कार्बन जो है हमको फुलेरिन के फॉर्म में भी मिलता है. तो कार्बन के डायमंड, ग्राफाइट एंड फुलेरिन, दे आर द allotrope. दैट मीन्स दे आर प्रेजेंट इन अ डिफरेंट फॉर्म. ठीक है, दैट इज नोन एज द allotrope. एंड थर्ड पॉइंट इज in diamond, each carbon atom is sp3 hybridized. In diamond, each carbon atom is sp3 hybridized and bonded with four other carbon atom by a single covalent bond. ये पॉइंट को देखो, क्या कह रहा कि डायमंड जो है, डायमंड के स्ट्रक्चर में जो कार्बन प्रेजेंट होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं और वो चार और डिफरेंट कार्बन एटम से अटैच होते हैं बाय द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड. दिस पॉइंट इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. सो लेट्स सी द डायग्राम. This is the carbon, this is also carbon, this is also carbon, this is also carbon, this is also carbon. One carbon is attached to the other four carbon atom. Here, one carbon is attached to the other four carbon atom in diamond structure. So, it is colored by light so that circle and line circle, they are a carbon atom. Both are a carbon atom. ये भी कार्बन एटम है और ये भी कार्बन एटम है और ये सेंट्रल कार्बन एटम, each कार्बन एटम is sp3 hybridized. Each carbon atom is sp3 hybridized. Each carbon atom is sp
hybridized. Now what is meant by the sp3 hybridized? Here in that diagram, the carbon and carbon atom is attached by the single bond, and single bond form a sigma bond. Here कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड. एंड व्हेन सिग्मा बॉन्ड कितने प्रेजेंट है? 1 2 3 4. व्हेन 4 sigma bond are present, that time they are called as the sp3 hybridization. When 3 sigma bond are present, that time they are called as the sp2 hybridization. When 2 sigma bond are present, that time sp hybridization. Here 4 sigma bond are present, that's why it is called as the sp3 hybridization. And next point is each carbon atom which show the regular tetrahedral in shape. कौन से शेप में प्रेजेंट होता है? तो टेट्राहेड्रल. ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वो आपका टेट्राहेड्रल शेप का होता है. टेट्राहेड्रल इन शेप. टेट्राहेड्रल होता है. टेट्राहेड्रल का मतलब क्या होता है? टेट्राहेड्रल इट मींस इन अ टेट्राहेड्रल शेप. ये जो टेट्राहेड्रल शेप है इसके बीच में ये दोनों बॉन्ड के बीच का एंगल, ये दोनों बॉन्ड के बीच का एंगल, ये दोनों बीच के बॉन्ड के एंगल, मतलब ईच एंगल इज 109 डिग्री 28 सेकेंड, मतलब 109 डिग्री 28 सेकेंड ये एंगल होता है इनके बीच में. मैं यहाँ डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बताती हूँ. ये मेरे पास 4 चौक है. 4 चौक इट मीन्स 4 बॉन्ड है, और 4 बॉन्ड ये कॉर्नर में कार्बन एटम है हर के बाद. तो देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ये ऊपर वाली लाइन मतलब कि दिस बॉन्ड, एंड सेकेंड वाली जो लाइन है ये दिस बॉन्ड, एंड ये जो लाइन है ये आपके सामने में दिख रही है. दिस इज द थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ. This is the fourth, and this is the tetrahedral in shape. This is the tetrahedral shape. Tetrahedral shape it means the 2 bond here, these and these. अगर मैं ये और ये इन दोनों पेयर को अगर दिखाती हूँ, ये दोनों बॉन्ड को दिखाती हूँ, तो ये प्लेन में है. ये प्लेन में, ये प्लेन के आगे है. प्लेन के क्या है? आगे. और ये जो बॉन्ड दिख रहा है ये प्लेन के जस्ट पीछे. ये जो है ये प्लेन के जस्ट क्या है? पीछे. ये तो पीछे. लेकिन इन तीनों चारों के बीच में एंगल जो है वो 109 डिग्री 28 सेकेंड है. और ये जो आपका स्ट्रक्चर है वो 3 डायमेंशनल है. ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है आपका? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर शो करता है. और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर शो करता है. 2 बॉन्ड जो है वो प्लेन में है. 2 बॉन्ड आर प्रेजेंट इन प्लेन में, और एक प्लेन के सामने के साइड में है और एक प्लेन के बैक साइड में है. सेम के सामने के साइड वाले को हम लोग क्या कहते हैं? तो वेज डायग्राम कहते हैं. और पीछे वाले पोर्शन को हम लोग डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. तो ये हमारा 3D स्ट्रक्चर है. समझ में आ रहा? तो दैट्स व्हाई हियर द ईच कार्बन एटम विच हाउ द रेगुलर टेट्राहेड्रल शेप. टेट्राहेड्रल शेप का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हर एक एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा. वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा. उसमें 2 बॉन्ड जो होते हैं वो कैसे रहेंगे? प्लेन में रहेंगे. ठीक है. और एक सामने रहेगा और एक प्लेन के बैक साइड में रहेगा. ठीक है. एंड हेंस नेक्स्ट पॉइंट है, एंड हेंस देयर इज 3-dimensional नेटवर्क स्ट्रक्चर. इसीलिए यहाँ पे
क्या रिप्रेजेंट होता है, तो 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट होता है। ये यहाँ पे 3 डायमेंशनल मतलब x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस आल्सो रिप्रेजेंट। यहाँ पे x एक्सिस भी है, y एक्सिस भी है और z एक्सिस भी है। इसीलिए इस वाले स्ट्रक्चर को 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर कहते हैं। और आपको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड इट इज आल्सो नोन एज द नेटवर्क सॉलिड। इसको हम लोग नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं और इसीलिए इसको नेटवर्क स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये नेटवर्क स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे फिनिश नहीं होता, तो ये फिर से कंटिन्यू होता है। जैसे कि ये कार्बन है, इस कार्बन ने इस कार्बन को 4 कार्बन को अटैच किया, 1 2 3 4। फिर ये वाला कार्बन जो है ये फिर से 4 दूसरे कार्बन को अटैच करता है, लाइक दैट। देखो ये डायग्राम। अब मैंने यहाँ पे एक सर्कल ले लिया, हाँ, मतलब मैंने ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, ये वाला इस टाइप, मतलब ये कार्बन एटम लिया, ये सेंट्रल कार्बन लिया, तो ये कार्बन अगर 4 बॉन्ड बना रहा है तो वो कैसे बनेगा, एक वाला ये, इट मींस दैट हियर, सेकंड ये यहाँ पे, और इसको मैंने लाइन से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। थर्ड वाला जो है वो लाइक दैट यहाँ पे, और इसको मैंने इस टाइप से रिप्रेजेंट किया। मतलब ये जो कार्बन है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, तो 4 बॉन्ड बना रहा है। किसके साथ, तो कार्बन के साथ। नंबर 1 2 3 4। फिर इस कार्बन की बात करते हो तो ये भी 4 बॉन्ड बना रहा है। देखो कैसे, ये एक इधर इस टाइप से, ये यहाँ पे एक ही झुकने वाला, एक इधर इस साइड बनाया और एक बना रहा है इधर इस साइड, ठीक है। फिर इस कार्बन की बात करती हूँ तो ये कार्बन भी 4 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर। इस टाइप से रिप्रेजेंट होते जाता है। और ये नेटवर्क स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है ये कंटिन्यू चलते जाएगा, ये कंटिन्यू चलते जाएगा। मतलब कि फिर से अगर आप बनाना चाहते हो तो फिर से इसको इधर इधर और इस साइड में आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, इस नेटवर्क स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। ये जो आपको डायग्राम दिख रही है वो क्या है, तो डायमंड का स्ट्रक्चर। डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा है, तो नेटवर्क है। ये नेटवर्क कंटिन्यू चलते जाएगा, एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से, मतलब एक कार्बन जो है दूसरे 4 कार्बन से जुड़ेगा और दूसरा कार्बन जो है फिर से वो 4 कार्बन से जुड़ते जाएगा और इस टाइप से एक नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। वो भी कैसा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो hence there is a 3-dimensional network type of structure, and in that all the valencies of the carbon atom, next वाला point है, all the valency of carbon atom is strongly held by other कार्बन बॉन्ड। मतलब यहाँ पे जो कार्बन एटम है, एक कार्बन जो है दूसरे 4 कार्बन से अटैच है, दूसरा जो कार्बन है तीसरे 4 कार्बन से अटैच है। दैट मीन्स कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। मतलब उसकी वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की, 4 होती है। तो चारों के चारों जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे कार्बन के साथ अटैच होते हैं। तो हियर नो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। That means all the valency of a carbon atom is strongly held by the other carbon atom. So there is no free electron, and so diamond is bad conductor of heat and electricity. Bad conductor. It is a bad conductor. Why? Because there is no free electron. Because all the electron they are engaged to bonded the other 4 carbon atoms. समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे जो भी कार्बन है, जिसकी कार्बन की जो 4 वैलेंसी होती है, वो दूसरे ये कार्बन की बात करेंगे तो ये इसमें क्या इतना है, 1 2 3 4,
इस कार्बन की अगर मैं बात करती हूँ तो देखो 1 2 3 4, अगर इस कार्बन की भी बात करती हूँ तो ये कार्बन भी आपका दूसरे 4 कार्बन बताता है। अगर अगर मैं और स्ट्रक्चर को बनाना चाहती हूँ तो ये स्ट्रक्चर चाहे जितना लॉन्ग आप बनाना चाहो उतना बना सकते हो। तो मैंने 1 या 2 स्टेप में आपको बना के दिखाया है, कम से कम 1-2 स्टेप में होना है। लेकिन हर कार्बन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो ईच कार्बन दे जॉइंड बाय द अदर 4 कार्बन atom and there is no free electron. That why the diamond is a bad conductor of heat and electricity. And last point it is the 7 point number 7. Diamond it is a very hard, बहुत ज्यादा हार्ड with high melting point. और मेल्टिंग पॉइंट कितना है तो 3550 डिग्री सेल्सियस, इतना इसका मेल्टिंग पॉइंट है। इट इज अ वेरी हार्ड एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट कितना है तो 3550 डिग्री सेल्सियस, इतना डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट है और बहुत ज्यादा हार्ड है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। इसी वजह से डायमंड इट इज अ वेरी हार्ड सब्सटेंस। व्हाट इट ऑल दैट पॉइंट, प्लीज नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स क्विकली। Before my complete my discussion, please practice this diagram. Okay, and see you again with next example, and thank you for watching this video.